Hello, good morning, students. Yesterday we gave this assignment, The Rise of Nationalism in Europe, with 40 MCQs. I hope that you solved these MCQs, and today we are going to discuss all these MCQs, and you have to match your answers with this key. So, question number 1, LA, the measuring unit in Germany, was used to measure. It was the measuring unit used for cloth, thread, land, height. So, the correct answer is for cloth, measuring cloth, right? So it is LA, the measuring unit in Germany that was used to measure cloth, because you know that there was confederation of 39 states. There were 39 states in this confederation in Germany, and in all these kinds of states different measuring criteria was used. For example, Frankfurt, Wittenberg, Freiburg, etc. So, but this unit was used for cloth. Zollverein started in 1834, initiated by Prussia. You know that Zollverein was a group that was trade union, customs union, labor union, and farmers union. So this is correct answer is B. Zollverein was customs union that was started in 1834, joined by other states of confederation in Germany, but it was initiated by Prussia. So you have to remember. Next question. What do the saints, angels, and Christ symbolize in the utopian vision? Utopian vision of Frederick Sorio. Equality among people, fraternity among nations, freedom of nations, and resentment against nations. So the answer is B, fraternity among nations. If you see that visualizing painting made by Frederick Sorio in 1848, you can see that angels and Christ, saints, etc. In the background, and at the top in that picture. So you can find that it is written on the plates fraternity. So fraternity among nations, and all the nations are walking in a queue in front of Statue of Liberty. चलते हैं अगले क्वेश्चन में. Who were the Junkers? Junkers कौन थे? Junkers were soldiers, large landowners, aristocracy, and weavers. So the correct answer is Junkers were large landowners. Junkers were large landowners. बड़े जमींदार को यूरोप के कुछ हिस्सों में जंकर्स कहा जाता है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which treaty recognized Greece as an independent nation? Treaty of Constantinople 1832, Treaty of Vienna 1815, Treaty of Versailles 1871, none of these. तो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, जिसको हिंदी में कुस्तुनतुनिया की संधि कहते हैं. ग्रीस में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो 1821 में स्टार्ट हुआ, और 1832 में इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ओटोमन एम्पायर ने उसको फ्री कर दिया. Sixth question. By which of the following treaties was United Kingdom of Great Britain formed? UK कौन सी ट्रीटी से शुरू हुआ? इट मीन्स यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन इनमें से कौन सी ट्रीटी से हुआ? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, एक्ट ऑफ यूनियन, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ वियना. तो इसमें बी करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक्ट ऑफ यूनियन, जो 1707 में साइन किया गया था, और बाद में इसमें नीदरलैंड्स और इंग्लैंड के अलावा स्कॉटलैंड और आयरलैंड भी इसके अंदर आ गए थे. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पावर्स कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन? नेपोलियन को इनमें से कौन सी पावर ने हरा दिया? तो आप इसमें ग्रुप्स हैं कुछ कंट्रीज के, वो आप पढ़ेंगे. इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, रसिया. इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन, रसिया. ऑस्ट्रिया, प्रसिया, रसिया, ब्रिटेन. एंड ब्रिटेन, प्रसिया, रसिया, इटली. तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर. 1814-15 में जो वाटरलू वॉर हुआ था, उसमें नेपोलियन को हराने वाली ये 4 पावर्स थी, जिसके बाद वियना ट्रीटी को साइन किया गया था, वियना कॉन्फ्रेंस हुआ था. ये भी आपको याद रखना है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रोमांटिसिज्म आपने गॉटफ्राइड हर्डर का नाम सुना होगा, जो रोमांटिसिज्म के लिए काफ़ी फेमस है जर्मनी में. So romanticism refers to cultural movement, religious movement, political movement, literary
movement. So the correct answer is A, cultural movement. So romanticism was a cultural movement. It refers to a cultural movement that shows through the pictures, paintings, etc., images, etc., sentiments of the people. अगर आप ऐसी रोमांटिसिज्म पेंटिंग्स को देखेंगे तो यू कैन फील द रिलेशंस एंड द इमोशंस अमंग द पीपल, एंड यू कैन हैव द सिंपैथी टू द पीपल दोज हु आर एक्सप्लॉइटेड और टॉर्चर्ड बाय समबडी एल्स. जैसे ग्रीस मूवमेंट में जो यूगेन डेलाक्रोइक्स ने जो पेंटिंग बनाया वो आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक में. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following types of government was functioning in France before the revolution of 1789? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि 1789 की रिवोल्यूशन किसके अगेंस्ट हुई थी. डेफिनेटली जो है एक तरह से मोनार्कियल सिस्टम था. तो किस तरह की गवर्नमेंट थी फ्रांस में अगर हम देखें तो डिक्टेटरशिप, मिलिट्री, बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन और डी मोनार्की. तो इसमें करेक्ट आंसर आ गया आपका डी मोनार्की, क्योंकि लुई 16 जो है वो एक मोनार्क था, किंग था, और किंग के रूल को हम मोनार्की कहते हैं. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कंसिडर्ड एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन? क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन इनमें से कौन सी कंट्री को समझा जाता है? इंग्लैंड, फ्रांस, ग्रीस, रसिया. तो इसमें करेक्ट आंसर आपका आ गया ग्रीस. सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी किसी कंट्री में इस तरह के जो है चेंजेस और रिवोल्यूशंस, फ्रीडम मूवमेंट जो है नहीं हुआ जैसा ग्रीस में. इट वाज क्रेडल ऑफ यूरोप, यूरोपियन civilization. So because there were no this kind of changes in England, France, Greece, Russia, so Greece is known as cradle of European civilization, क्योंकि यहीं से ही काफ़ी सारी चीज़ें यूरोप को और पूरी दुनिया को मिली, लाइक थिएटर, डेमोक्रेसी, फ़िलोसफी. एथेंस में आपको याद होगा, एथेंस में डेमोक्रेसी सबसे पहले, डेमोक्रेटिक के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका बर्थ हुआ वहाँ पे. फ़िलोसफी, ओलंपिक्स एट्सेट्रा. फ़िलोसफी भी ग्रीस में ही डेवलप हुई थी. फॉर एग्जांपल प्लेटो, सोक्रेट, एरिस्टोटल, ये सब बड़े बड़े फिलोसफर जो थे वो ग्रीस में ही हुए. सो इन दिस वे इट इज़ कॉल्ड क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि यूरोपीय सभ्यता का पालना. चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरू, हु विजुअलाइज्ड इन हिज पेंटिंग अ सोसाइटी मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था. डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक टाइटल से जो उसने एक पेंटिंग बनाया, 4 वॉल्यूम्स की पेंटिंग बनाई, तो फ्रेडरिक सोरू ने 1848 में. तो फ्रेडरिक सोरू की कंट्री का नाम बता रहा है. ही वॉज अ जर्मन, स्विस, फ्रेंच, अमेरिकन. तो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द आंसर. ही वॉज फ्रेंच आर्टिस्ट. सी इज द करेक्ट आंसर. फ्रेडरिक सोरू वॉज फ्रेंच आर्टिस्ट. Nationalism, which emerged as a force in the late 19th century means. इसका मतलब क्या है? Strong devotion for one's own country and its history and culture. Strong devotion for one's own country without appreciation for other nations. Strong love for one's own country and hatred for others. Equally strong devotion for all the countries of the world. So the correct answer is A, strong devotion for one's own country and its history and culture. अपनी कंट्री की हिस्ट्री और कल्चर से लगाव होना और डिवोशन होना, ये नेशनलिज्म का जनरल मीनिंग है. मैच द टर्म विद द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. हम इनको यूटोपियन सोसाइटी क्या होती है, फिर उसके बाद हम देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं. अ सोसाइटी अंडर अ बेनोलेंट मोनार्की, जहाँ मोनार्की हो, या सोसाइटी दैट इज़ अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट, या ऐसी सोसाइटी जो कि है ही नहीं. ये सोसाइटी अंडर द आइडियल सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, जिसमें बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक कंडीशन है. सोसाइटी अंडर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. तो इसमें 2 and 3 जो है यूटोपियन सोसाइटी जो मतलब इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है. सो 2 and 3 आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. Come to the next question. Pick out the correct definition to define the term plebiscite. Plebiscite क्या होता है?
जैसे चैप्टर में हमने पढ़ा था प्लेबिसाइट के बारे में, पहले ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं। प्लेबिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ओनली द फीमेल मेंबर्स ऑफ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट और प्रपोजल। ये तो श्योर है कि ये एक प्रपोजल होता है। प्लेबिसाइट इज डायरेक्ट वोट by the female members of a matriarchal system to accept or reject a proposal। किसी प्रपोजल को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने का ही जो वोटिंग होती है उसको प्लेबिसाइट बोलती हैं। लेकिन किसके लिए? प्लेबिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट ओनली अ चोजन फ्यू फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट प्रपोजल। और इसके बाद आता है डी ऑप्शन, प्लेबिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। तो इसलिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो आ जाएगा डी, क्योंकि ये सभी के लिए है। राइट टू वोट जो है या डायरेक्ट वोट जो होता है वो सभी के पास राइट होता है इक्वली, तो उसे ही हम प्लेबिसाइट बोलते हैं। अर्नस्ट रेनल, नाम सुना होगा आपने, अर्नस्ट रेनल, यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन 1882, राइट, आपको याद आ गया होगा। बिलीव्ड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज अ नेसेसिटी बिकॉज। अर्नस्ट रेनल ने जो लेक्चर दिया था उसको व्हाट इज अ नेशन कहा जाता है। तो उन्होंने इसके लिए किस चीज़ को नेसेसिटी बताया नेशंस के लिए? इट इंश्योर्स प्रोटेक्शन टू ऑल इनहेबिटेंट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 वी आर डिस्कसिंग। इट इंश्योर्स लिबर्टी टू ऑल इनहेबिटेंट सिटीजन्स एंड इट इंश्योर्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू इट्स इनहेबिटेंट्स। यानी कि जो लोग यहाँ रहते हैं उनके पास पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या लिबर्टी हो या प्रोटेक्शन ऑफ ऑल इनहेबिटेंट्स। किस तरह का प्रोटेक्शन यहाँ क्लियर नहीं है। इट इंश्योर जॉब्स एंड गुड हेल्थ टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। तो इसमें आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो लिबर्टी का है, क्योंकि अर्नस्ट रेनल ने लिबर्टी के ऊपर फोकस किया था। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना। कांग्रेस ऑफ वियना आपको याद होना चाहिए, नेपोलियन के हारने के बाद 1815 में कांग्रेस वियना हुई थी। इनमें से किस कंट्री ने इसको ज्वाइन नहीं किया था? तो ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया और स्विट्जरलैंड। तो ये तीनों कंट्रीज तो थी, आपको इजीली याद होगा। स्विट्जरलैंड इसमें नहीं था, राइट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 16, क्वेश्चन नंबर 16 डी। 17, द फर्स्ट ग्रेट रेवोल्यूशन विच गेव द क्लियर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म विद इट्स कोर वर्ड्स लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि 9th क्लास से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। द रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ, और इसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 से 83, और इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये 1857 को मानते हैं। तो इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो आंसर आ जाएगा। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 इज बी। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर करेक्ट। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आफ्टर द एंड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इट वॉज प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its density, right, destiny, भाग्य निर्माता होंगे, अपने ही भाग्य निर्माता होंगे। France will have a constitutional monarchy and the new republic will be headed by a member of the royal family। तो रॉयल फैमिली के अगेंस्ट तो एक रिवोल्यूशन था ही, तो ये भी गलत हो गया। A centralized administrative system will be put in place to formulate uniform laws for all citizens। सभी citizens के लिए एक जैसे कानून होंगे। और imposition of internal custom duties and dues will continue to exist in France। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है, सभी स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको स्टेटमेंट्स दिखेंगे। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, दिस वन एंड दिस वन। सो 1 and 3, सो 1 and 3 है सी में, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज डिक्लेयर्ड दैट द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन वाज टू कॉन्कर द पीपल ऑफ यूरोप, टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, टू स्ट्रेंथन एब्सोल्यूट मोनार्कीज इन ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप, टू प्रोपोगेट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें सी तो बिल्कुल गलत है क्योंकि मोनार्की के अगेंस्ट तो था ही ये, और ये भी गलत है क्योंकि डेस्पोट जो है टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, यस ये करेक्ट है क्योंकि डेस्पोटिज्म जो है वो क्या होता है, मोनार्कियल रूल या जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, निरंकुशवाद जिसको हम बोलते हैं, उससे फ्री होना ही, लिबरेट होना ही ये था। और ये आइडियाज़ तो इसका एक इम्पैक्ट था, लेकिन
इसके लिए रिवोल्यूशन नहीं किया इन्होंने कि पूरी दुनिया में ये आइडियाज फैले। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज यूजुअली नोन एज द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी कोड, नेपोलियनिक कोड, यूरोपियन इंपीरियल कोड, द फ्रेंच सिविल कोड। तो इसका सबसे जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो आ जाएगा नेपोलियनिक कोड। 1804 में जो नेपोलियन ने कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस जो है इम्प्लीमेंट किए फ्रेंच और फ्रेंच कॉलोनीज़ के अंदर, तो उसको हम नेपोलियन कोड कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हाफ पार्ट हमने कर लिया है, हाफ पार्ट आपका शाम तक दूसरा वीडियो आ जाएगा। तब तक आप इसको रिवाइज़ करें और पूरे चैप्टर को एक बार दोबारा से अच्छे से रिवाइज़ करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।